Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome all for the video series of Elements of Electronics having a subject code 22213. Today I am going to deliver a lecture on Chapter 3 Transistor and today's topic of discussion is Transistor Configuration. The course outcome for this course as use BJT and FET in different electronic circuits. Whatever the electronic circuits we are going to design by using, we have to use BJT and FET, and what is the use and where to use of this BJT and FET we will study here. The chart shows the CO and PO mapping. Here the CO3 getting mapped with the PO1, 2, 3, 4, and how this map with all these PO we were discussed in the last lecture. So CO3 getting mapped with all these PO and we shows in this chart. The learning outcomes. After the completion of this course, learners, it means you will be able to describe CE, CB and CC configuration with neat circuit diagram. Differentiate CE, CB and CC configuration on the basis of different parameters. In the last lecture, we were studying about क्या पढ़ा था हमने symbols of PNP and NPN transistor. उसके बाद में how to construct and how it will work, that is the construction and working principle of PNP and NPN transistor. Let's start with the transistor configuration. हम start करते हैं अभी transistor configuration क्या होता है. सबसे पहले कि transistor, you all of you know that transistor, that is the combination of two words, that is the trans and the register, and how it will be configurable, मतलब कैसे इसको आप लोग different categories में use करते हो. तो देखो start करते अपन यहाँ पे transistors having three different types of configuration. transistor को three different type की configuration है. One is the common base configuration, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. मतलब यहाँ पे ट्रांजिस्टर के जैसे 3 टर्मिनल्स होते हैं, तो उसका जो बेसिक टर्मिनल है वो किसको यूज होगा, बेस होगा. जो बेस कॉमन रहेगा इनपुट साइड के लिए एंड आउटपुट साइड के लिए. वही अगर आप लोग इमीटर के बारे में देखोगे तो इमीटर कॉमन रहेगा एट द इनपुट साइड एंड आउटपुट साइड, व्हाइल गोइंग फॉर द कलेक्टर द इनपुट साइड और आउटपुट साइड में कलेक्टर आपका क्या रहेगा, कॉमन रहेगा. So let's start with the common base configuration. Here common base terminology is derived from the fact that the कौन सा है कि base is common to both input and output of the configuration. मैंने आप लोगों को बताया कि base is common रहता है किसको, input as well as the output side. उसके बाद में base is usually the terminal closest to or to ground potential, मतलब क्लोज रहता है इनपुट और आउटपुट साइड में, वही वो ग्राउंड पोटेंशियल में भी रहता है. ऑल करंट डायरेक्शन विल रेफर टू कन्वेंशनल फ्लो. All current directions will refer to conventional flow and the arrows in all electronic symbols have a direction defined by this convention. मतलब क्या है कि आप लोगों के जो मतलब होल फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव जैसे फ्लो होता है, whole consist of the positive charge while electronics consist of the negative charge. All of you know that कि आप लोगों का करंट का डायरेक्शन जो होगा वो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव रहता है. वही यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, फ्रॉम होल टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोज इन all electronic symbol have a direction defined by this convention. तो this is all about the common base configuration. आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी आप लोग common base के लिए जाओगे तो you have to consider that base it is common to both input as well as the output side, or it is always connected to the ground potential, or it is it will be closest to the input and output side. नोट दैट द अप्लाइड बाइसिंग, मतलब आप लोग कोई भी वोल्टेज सोर्सेज जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो आर सच एज टू इस्टेब्लिश करंट इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड फॉर ईच ब्रांच. मतलब आप लोग वोल्टेज का जो भी सोर्स यूज करोगे उसको आप लोगों को कंसिडर करना है कि हाउ टू इस्टेब्लिश द करंट इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड फॉर ईच ब्रांच. Then this is a diagram which shows the
कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को आप लोग अगर यूज करते हो तो हाउ दिस एनपीएन ट्रांजिस्टर गेटिंग कनेक्टेड बाय यूजिंग द कॉमन बेस। तो देखो आप लोग डायग्राम में देखोगे कि दिस इज इमीटर कलेक्टर एंड इमीटर बेस एंड कलेक्टर, इमीटर बेस एंड कलेक्टर एज इट इज एनपीएन मतलब पॉजिटिव चार्जेस आर इन द आउटवर्ड साइड, सो इमीटर के पास जाएंगे क्योंकि emitter consists of here the negative charge and base consists of the positive charge and current always flows from positive to negative, so the direction of this NPN transistor is from base to emitter. Is that clear to everyone? Then देखो दिस इज अ ट्रांजिस्टर, दिस इज अ एनपीएन ट्रांजिस्टर। आप लोग को होमवर्क में क्या करना है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर को लेके आप लोगों को डिजाइन करना है बाय यूजिंग द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो यहाँ पे बेस से शुरुआत करते हैं, तो करंट विल फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब डायरेक्शन क्या रहेगा, ऐसा डायरेक्शन रहेगा। तो आप लोगों का बेस जो है मतलब जो करंट है, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे पावर सप्लाई कनेक्ट किया, मतलब आप लोगों का करंट क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ऐसा करंट फ्लो होगा, बराबर है, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, अगेन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ऐसा करंट यहाँ पे। तो आप लोगों का सबसे पहले करंट यहाँ से शुरू होता है बेस से, क्योंकि ये कॉमन बेस है, कॉमन बेस से मतलब यहाँ पे डायरेक्शन रहेगा इस डायरेक्शन से, देन इट इज गोइंग फॉर द इमीटर, इमीटर का डायरेक्शन ऐसे, अगेन ऐसा करंट फ्लो होके वो इस हिसाब से आप लोगों के पास जाने वाला है, बराबर है। तो आप लोगों का जो डायरेक्शन है वो सबसे पहले यहाँ से करंट फ्लो का फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। आपको ट्रांजिस्टर को कंसीडर करना है, डोंट गो फॉर द पावर सप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे पॉजिटिव टू निगेटिव, तो यहाँ पे आप लोगों का करंट, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पे निगेटिव कनेक्ट किया, और यहाँ पे आप लोगों का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनपीएन। तो यहाँ पे देखो आप देखोगे कि दिस इज एनपीएन, हियर द पी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर मटेरियल इज गेटिंग सैंडविच इन बिटवीन द टू एन टाइप ऑफ मटेरियल, or emitter and the collector both are consist of the negative charge. It means it both are consist of the electronics and electronic charge material, और P जो है that is consist of the positive material, that is the holes। देखो यहाँ पे सेकेंड डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर बेस कलेक्टर। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इमीटर जो रहता है वो लाइटली डोप रहता है, मतलब मॉडरेट लेवल पे रहता है, उससे कलेक्टर जो रहता है वो हाईली डोप्ड रहता है, और आप लोगों का बेस जो है वो एकदम स्मॉल डोप रहता है, मतलब उसका जो गैप है वो कम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो P कंसिस्ट ऑफ द होल, बराबर है, P कंसिस्ट ऑफ द होल। आपने पावर सप्लाई को अगर ऑन कर दिया तो आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मटेरियल है, दिस कंसिस्ट ऑफ द एन टाइप ऑफ मटेरियल कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मटेरियल, दैट चार्ज मटेरियल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द होल, are getting attracted towards the hole, because निगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से ये जो है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो गए होल्स की तरफ। तो यहाँ पे होल्स में क्या है, यहाँ पे जगह कम होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्दी हो जाएगा, और गर्दी होने के कारण क्राउड हो जाएगा, क्राउड होने के कारण ये क्या होगा, अगेन यहाँ पे फ्लो होगा। तो यहाँ पे जो गैप कंसिस्ट होगा, इंसिस्ट होगा, उसको आप लोग बोलते हो जंक्शन, उसको क्या बोलते हो आप लोग, जंक्शन। तो ये जो रहता है दैट इज द मतलब यहाँ पे आप लोग जो वोल्टेज क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड एज द कट ऑफ ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहाँ पे क्या रहता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज, मतलब आप लोगों का क्या है, यहाँ से पॉजिटिव मटेरियल गेटिंग अट्रैक्टेड, सॉरी निगेटिव मटेरियल गेटिंग अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव मटेरियल, और उसके कारण क्या होगा, अगेन ये पॉजिटिव जो है वो इनके तरफ खींचे जाएंगे। तो यहाँ पे जो गैप रेडी होगा, मतलब निगेटिव भी यहाँ पे आ जाएंगे, इधर के भी, तो ये पॉजिटिव जो है वो इधर जाएंगे, तो करंट विल फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, और यहाँ पे जो लेयर फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज अ डिप्लीशन लेयर, जिसको क्या बोलते हैं अपन, डिप्लीशन लेयर। तो यहाँ पे इन दो मटेरियल के बीच में जो लेयर फॉर्म होगा दिस इज कॉल्ड एज अ डिप्लीशन। देखो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि बेस और कलेक्टर के बीच में एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुआ है, क्योंकि कलेक्टर इट इज अ हाईली डोप, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा आएंगे,
और यहाँ पे जो है वो लाइटली डोप रहता है, तो यहाँ पे इमीटर से आने वाले जो हो यहाँ पे, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के मिलाने के बाद जो लेयर फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज अ डिप्लीशन लेयर. तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अपन. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसका फेज एंगल जो रहता है दैट इज हैविंग अ 0 डिग्री. 0 डिग्री रहता है. इनपुट टर्मिनल कंसिस्ट ऑफ द इमीटर while the output terminal consists of collector. Here the voltage gain is high while the current gain is low, and it is a ratio of collector current and the emitter current. Power gain is low and the input impedance is the low while the output impedance is high. तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखना है. इनपुट टर्मिनल में क्या कनेक्ट होता है, आउटपुट टर्मिनल में क्या कनेक्ट होता है, उसका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मतलब करंट गेन क्या होता है, उसका रेशियो क्या होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. Then we'll go for the common characteristic. To describe the behavior of common base amplifiers require two sets of characteristics. देखो यहाँ पे two types of characteristics are required. One is the input or driving point characteristics, while the another one is the output or the collector characteristic. दोनों के characteristics आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है before going for the common base configuration. The output characteristics has the three basic region. मैंने already आप लोगों को last lecture में बताया था कि what are the different types of region the configuration have, that is the active region, saturation region and cutoff region. तो let's start with the active region. अभी एक्टिव रीजन क्या होता है, तो इट इज डिफाइंड बाय द बाइसिंग अरेंजमेंट. बाइसिंग अरेंजमेंट मतलब क्या कि कौन से टाइप का अरेंजमेंट आपने वहां पे किया है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द एक्टिव अरेंजमेंट. बाइसिंग मीन्स क्या कि वोल्टेज सोर्स किस हिसाब से आप लोगों ने प्रोवाइड किया है उस हिसाब से आप लोगों का करंट फ्लो होगा एंड दैट ट्रांजिस्टर बिकम्स इन द एक्टिव फॉर्म. देन द कट ऑफ रीजन. Region where the collector current is 0 ampere. Region where the collector current is 0 ampere. Then the last one is the saturation region where the characteristics to the left of VCB is 0. मतलब characteristics before the voltage between the collector and the base is 0 volt. जैसे ही 0 वोल्ट के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब कलेक्टर और बेस के बीच का वोल्टेज जो है वो अगर 0 वोल्ट आता है तो दैट ट्रांजिस्टर इट इज इन द क्या बोलते हैं उसको, सैचुरेशन रीजन. तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ मैं. दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द इमीटर करंट एंड द इमीटर बेस वोल्टेज. क्योंकि आप लोगों का इनपुट साइड में यहाँ पे कौन सा टर्मिनल लगा हुआ है, इमीटर. इमीटर से फ्लो होने वाला करंट भी कौन सा रहेगा, इमीटर करंट. और बेस और इमीटर के बीच का वोल्टेज क्या रहेगा, वोल्टेज बिटवीन इमीटर एंड बेस. तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है वोल्टेज बिटवीन इमीटर एंड बेस एंड हियर द RE. जैसे ही आप लोगों का करंट देखो सबसे पहले फ्लो नहीं हो रहा है. कब तक नहीं होगा, जब तक कि आप लोगों के निगेटिव चार्ज पार्टिकल आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तब तक कि आप लोगों का करंट फ्लो नहीं होगा. और जैसे वो स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में आपका करंट इस हिसाब से फ्लो होना शुरू होगा. तो जो फ्लो होने वाला करंट जो है वो मतलब उसके कारण आप लोगों का जो वोल्टेज है इन बिटवीन द कलेक्टर एंड बेस इट गेटिंग इंक्रीजेस. आप लोगों का वोल्टेज को क्या है जो इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोगों का करंट फ्लो होते जाएगा. बराबर है. तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों का कि आप लोगों का जैसे ही करंट बढ़ गया वैसे ही आप लोगों का वोल्टेज भी बढ़ गया. Is it clear to everyone? This is the input characteristics and this is the output characteristics in between the IC and the VCB. Output characteristics है ये. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो सबसे पहले आप लोगों का IE 0 एम्पीयर, फिर आपका करंट डे बाय डे मतलब टाइम टू टाइम बढ़ रहा है. जैसे जैसे आप लोगों का वोल्टेज अब कांस्टेंट रहेगा लेकिन आप लोगों का करंट बिकम्स इंक्रीजेस. बट एक पर्टिकुलर टाइम आ जाएगा जब तक आपका करंट कंटिन्यूसली फ्लो होते जाएगा तो आप लोगों का करंट एक टाइम पे कांस्टेंट लेवल पे आ जाएगा जिसको अपन बोलेंगे क्या, एक्टिव रीजन, जहाँ पे आप लोगों का करंट फ्लो हो जाएगा और आपका ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा. उसके बाद में ये कौन से वैल्यू पे आप लोगों का करंट फ्लो होना शुरू हो गया, दैट इज द कट ऑफ रीजन. और जब कांस्टेंट लेवल पे रहा था दैट इज कॉल्ड एज द सैचुरेशन रीजन. ठीक है. तो these are the input and the output characteristics of common base configuration. Now
दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड द कट ऑफ रीजन। तो देखो जैसे ही आई इंक्रीज होता है आप लोगों का कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होता है, मतलब जब इमिटर करंट इंक्रीज होगा तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा, जिसके कारण जो बेस और इमिटर के बीच का जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, और वाइल द कलेक्टर एंड बेस के बीच का जो जंक्शन है दैट इज द रिवर्स बायस। इसको अगर रेफर करते हैं तो IC इज IE, मतलब आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, IC इज IE एंड IC इज नॉट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। जैसे ही करंट कलेक्टर करंट जो है वो इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस एंड इट इज सुटेबल रीजन फॉर द ट्रांजिस्टर वर्किंग एज अ एम्पलीफायर। वाइल एक्टिव रीजन में क्या होता है कि आप लोगों का जैसे ही ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में एंट्री करता है तो आपका जो ट्रांजिस्टर है इट इज वर्क एज एन एम्पलीफायर, वो सैचुरेशन रीजन में या फिर कट ऑफ रीजन में नहीं करेगा। सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, BE एंड द CB जंक्शन आर ओनली फॉरवर्ड बायस व्हाइल द स्मॉल चेंजेस इन VCB विल कॉज द बिग डिफरेंस टू। जैसे ही अगर कोई भी स्मॉल चेंजेस आता है कलेक्टर और बेस के वोल्टेज में तो इट विल बी डिफ्लिकेटेड टू द मतलब कलेक्टर करंट में उसका असर हो सकता है। The allocation for this region is to the left of VCB is equals to 0 volt। उसके बाद में कट ऑफ रीजन में क्या होता है कि रीजन बिलो द लाइन ऑफ आई, जैसे इमिटर का करंट फ्लो होना चालू होने का है लेकिन वो 0 एम्पियर पे है तो दैट इज इट इज इन द कट ऑफ रीजन। B and the CB is reverse bias, no current flow at collector and only leakage current will flow from the collector side. So this is all about the cutoff region, saturation region and the active region. Now how we will define the current amplification factor for the common base, and it is denoted as a alpha. So in the DC mode the level of IC and the IE due to majority carrier कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इसमें क्यों प्रेजेंट था, इलेक्ट्रॉन्स था एज कम्पेयर टू होल, तो मेजॉरिटी कैरियर आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स आर रिलेटेड बाय द क्वांटिटी कॉल्ड एज अ अल्फा। इन द DC mode the level of IC and the IE due to majority carrier are related by a quantity called as alpha. Here the alpha is denoted as IC upon IE, that is it is a ratio of collector current to the emitter current. It is called as the alpha, which is nothing but the current amplification factor for the common base configuration. So IC is directly proportional to the IE. बराबर है, जैसे ही IC बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका इमिटर करंट भी बढ़ेगा। मैंने आप लोगों को वहां पे भी बताई कि आप लोगों का कलेक्टर करंट है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द इमिटर करंट। अगर आपका इमिटर करंट बढ़ता है तो आपका कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा। फॉर AC सिचुएशन वेयर द पॉइंट ऑफ ऑपरेशन मूव्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व एंड AC अल्फा डिफाइंड बाय अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा, मतलब लिटिल वेल अगर चेंजेस आता है और आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स में से अगर किसने डिफाइन करने के लिए बोला अल्फा को, तो आप लोगों को इस हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इमिटर current. Alpha is defined as the rate of change of collector current to the rate of change of emitter current. Alpha, a common base current gain factor that shows the efficiency by calculating the current percentage from current flow from emitter to collector. आपका emitter से लेकर के collector तक के कैसा current flow हो रहा है by applying the power supply, उस piece पे आप लोगों को current amplification factor find out करना है। The value of alpha is typical from 0.9 to approximately 0.998. This is the value of alpha, and this is all about the current amplification factor of the common base configuration. So this lecture summarizes as क्या पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन देखा हमने यहाँ पे, उसके बाद में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को देखा यूजिंग NPN ट्रांजिस्टर, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद में डेफिनेशन एंड डेरिवेशन ऑफ अल्फा। ये सब हमने पढ़ा, अभी कॉमन बेस को पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे common emitter and the common collector. So thank you so much for listening this lecture very carefully. In the next lecture we will study about the common emitter configuration. Thank you.